Hello 7th class students, welcome you all on my YouTube channel. Students, you know your online classes are going on, but here we decided to upload the YouTube videos also for you, so that the students who are unable to join the classes, they could be beneficial from these types of videos. So here I am going to start our first chapter, the medieval world. The medieval world, actually, students, you know it very well that our history is divided into the three main periods: the ancient, the medieval, and the modern. Ancient, about the ancient system, you learn in the class 6th. In the class 6, you have already learned about the ancient period of the history, in which you learned about the four major civilizations of the world, that is Indus, Chinese civilization, Mesopotamian, and the Egyptian. And later on you learned about the Vedic period, and then after this there was a Mauryan Empire, in which you learned about the Ashoka, Chandragupta Maurya, and then at last Gupta's empire was there, Chola's empire was there. So these were the part of the ancient. Now in the 7th standard you learned about the medieval world. In this chapter you learned about the medieval world, and the upcoming chapters you have to learn about the medieval India also. In the medieval India you learn how the Muslim invaders came to India, and how they started to rule, and what type of changes occurred when they took the control of the India. And in the 8th standard you learned about the modern time of the history. So these three divisions makes it easier to understand historical events. So ये divisions किस लिए की गई हैं? ताकि जो historical events है उसको हम easily understand कर सकें, and the changes that events have brought into the lives of the people, और जो changes हुए due to this period, जो भी changes हुए, we can easily understand these things. So the word medieval is made up of two Latin words. Medius means middle, and the aevum meaning age, means middle age. Therefore medieval history deals with the periods that lies between the ancient and the modern periods of human history. तो जो बेटा देखो, जो हमारा medieval period है ये lies करता है between the ancient and the modern time period. The medieval period however is not identified with the same dates. अब देखो ये नहीं है कि same dates है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेम डेट्स हैं medieval पीरियड की. इन द इंडिया इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द 8th to 18th century CE, जबकि यूरोप में क्या टाइम पीरियड है इसका 600 to 1500 CE. तो इन द यूरोप मीन्स मच अर्लियर देयर वाज अ बिगिनिंग एंड एंडेड ऑफ द medieval पीरियड, बट इंडिया में इसका टाइम पीरियड लेट स्टार्ट हुआ एंड इट वाज एंडेड लेट 18th century. Okay, now come to the next phase of our chapter. In these years, means in the medieval time period, a number of social, religious and political forces arose that had a powerful impact on world history and the history of India. तो जो इन years में जो भी social में जो society में changes हुए, society in the sense लोगों का lifestyle change हुआ, वेयरिंग स्टाइल, उनके जो क्लोथिंग की सेंस है, ईटिंग हैबिट्स, रिलीजन में इन द इंडिया यू कैन से दैट व्हेन द मुस्लिम इन्वेडर्स केम टू इंडिया, इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड हुई. देन पोलिटिकल फोर्सेस मीन्स रूलर्स वर चेंज्ड. अब पहले और रूलर्स हैं, उनकी जगह पर और रूल करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर रूलर्स. सो इन दिस वे जो ये चेंजेस हुए सोशल, रिलीजियस एंड पोलिटिकल, they had a powerful impact on the world as well as on the India also. Medieval Europe, the Church and the Renaissance. By 476 CE, the last of the Roman emperors had been deposed. Roman emperors, actually देखो यूरोप में जो रोम जो एम्पायर था ड्यूरिंग द 1st century AD, एक बहुत एनलार्ज अम्पायर था ये, बट कुछ एक जो ट्राइबल्स ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, लाइक ये आपको पिक्चर शो हो रही है, विसिगोथ्स, हंस, वंडल्स वर सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स जो कि वॉर लाइक ट्राइबल्स थे. दे अटैक ऑन द कंटिन्यू दे अटैक ऑन द रोमन अम्पायर
and they destroyed it. Okay, so in jo and these invasions of various tribes were called the barbarian invasions. Next chapter में आपको पढ़ने को मिलेगा in the Christianity these tribals were called the barbarians. तो ये barbarians attack थे because they were the uncivilized people, और उनका एक ही motive था to attack on a particular empire on a country and to looted it. So the attack of these tribals destroyed the Roman Empire. तो जो रोमन एम्पायर डिपोज्ड हुए, जो एम्परर्स में जो यहाँ के जो लास्ट किंग्स थे, व्हेन दे वर डिपोज्ड मीन्स दे वर ओवरथ्रोन फ्रॉम द पोजीशन एंड पावरफुल एम्पायर हैड कोलैप्स. तो पावरफुल जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, इट वाज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर किंगडम्स. सो द ब्रेकअप ऑफ दिस एम्पायर गेव द राइज टू द फ्यूडलिज्म. अब देखो फ्यूडलिज्म क्या होता है. जब रोमन एम्पायर ब्रेकअप हुआ उसके बाद फ्यूडलिज्म एक सिस्टम जो था स्टार्ट हुआ. फ्यूडलिज्म में ये होता है कि जब जो ये सिस्टम में वेयर सर्व्स और स्लेव्स, सर्व्स मीन्स जैसे कि जो सर्वेंट्स होते हैं, दे प्रोवाइडेड लेबर एंड मिलिट्री सर्विसेज टू ए लॉर्ड. एक्चुअली में देखो आपको पता है स्लेव्स को होते हैं गुलाम, जो कि पूरी होल ऑफ द लाइफ वो अपने मास्टर के अंडर वर्क करते हैं, और इनके जो इवन चिल्ड्रन होते हैं उनकी भी लाइफ ऐसी ही होती है. तो जो लॉर्ड होता है वो इनको एक पीस ऑफ लैंड देगा, अपनी लैंड प्रोवाइड करेगा टू वर्क ऑन इट, और उसके उस वर्क के बदले में, वो लैंड के बदले में क्या, ये नहीं रखने के लिए मीन्स टू द फॉर सम टाइम. ओके, उसको लैंड प्रोवाइड करेगा अपने स्लेव्स को टू वर्क ऑन इट. वर्क के बाद जो भी वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, जो स्लेव्स है वो प्रोवाइड करेंगे लॉर्ड को, एंड लॉर्ड आल्सो टेक द सर्विसेज ऑफ द स्लेव्स इन द मिलिट्री एंड एज द लेबरर आल्सो. कि कहीं पर कुछ भी वो काम करवा सकते हैं. मिलिट्री सर्विसेज मीन्स कहीं पर भी उनको ये बोला जा सकता है आपको वार में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ये उनका हाउस होल्ड वर्क है या कुछ एग्रीकल्चर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो ये था सिस्टम फ्यूडलिज्म का, विच वाज मीन्स कॉज्ड इमेंस सफरिंग. तो इससे काफ़ी जो लोग जो थे, जो स्लेव्स थे, दे सफर्ड अ लॉट अमंग दिस सिस्टम. After this, the early medieval period in Europe, that is the 6th to 10th century CE, there was an age of faith. Age of faith, faith का देखो मीन्स क्या होता है, बिलीव. जब हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं. Since the Christian church had great influence and control over the people. तो इस टाइम तक जो क्रिश्चियनिटी थी वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी. चर्चिज वर पावरफुल, चर्च अथॉरिटीज पावरफुल हो चुकी थी. सो लोगों का जो बिलीव था वो काफ़ी था, एंड दे इवन ब्लाइंडली फॉलो द चर्च. जो चर्च कहेगा people have to accept that thing. So this period was also known as the dark age. इसको dark age भी कहा गया because scientific inquiry was discouraged by the church. क्योंकि देखो यहाँ पर चर्च ने टोटली डिस्करेज कर दिया था साइंटिफिक इंक्वायरी को. कोई भी ये नहीं है कि आप कोई भी अपने रीजंस कोई भी आप पूछ सकते हो. यू कांट आस्क एनीथिंग दैट व्हाई द सन इज राइजेज, व्हाई इज दीज थिंग्स इन हैपेंड, व्हाई देयर आर द लाइक यू कैन से एक्लिप्सिस आर देयर, एक्लिप्सिस क्यों होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ भी आप उनसे क्वेश्चंस पुट नहीं कर सकते हो कि आपकी जो फिर जो चर्च की जो ट्रेडिशंस हैं, वाई वी हैव टू फॉलो दैट वन. तो ये साइंटिफिक इंक्वायरी वाज डिस्करेज्ड बाय द चर्च, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग साइंटिफिक नॉलेज की तरफ जाएंगे तो उनको कौन फॉलो करेगा, हु ब्लाइंडली फॉलो द चर्च अथॉरिटीज. आफ्टर दिस वाज आल्सो द टाइम ऑफ द क्रूसेड्स. क्रूसेड्स क्या थे? क्रूसेड्स वाज द वॉर बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स. क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में देखो वॉर थी, दैट वाज कॉल्ड द क्रूसेड फॉर कंट्रोल ओवर द होली सिटी ऑफ जेरूसलम. जेरूसलम, अब आपको पता है जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है. जेरूसलम वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द जीसस क्राइस्ट. तो मुस्लिम इन्वेडर्स ने बेटा एक टाइम पर इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था. तो क्रिश्चियंस ने इसको फिर से अपने कंट्रोल में लेने के लिए मुस्लिम्स के साथ जो वॉर की, दैट वॉर वॉज नेम्ड एज अ क्रूसेड्स. And beginning in 1095 CE, these war went on to for about 200 years. तो 200 years तक ये war जो थी वो continue रही, crusades. Next is the all these factors resulted towards the end of the medieval period. तो इसके बाद जो medieval period था वो ended हुआ and it gave the birth to the powerful movement called the Renaissance. रेनेसांस क्या होता है? रेनेसांस मीन्स रीबर्थ. जब किसी चीज़ का रीबर्थ होता है, एक्चुअली रेनेसांस मीन्स द रीबर्थ ऑफ द एशियंट आर्ट एंड कल्चर ऑफ द ग्रीक. जो रोम का, देखो ग्रीक मीन्स हम रोम का ही रीड करें यहाँ पर पैराग्राफ में,
तो रोमन एम्पर का जो एशियन जो कल्चर था, जो आर्ट था, जब उसको दोबारा से उसको रीड किया गया, उनके कल्चर को, उनका जो लिटरेचर है, दैट वाज reread by the people. That moment is called the Renaissance. So Renaissance brought in a new spirit of adventure and learning in Europe, the effects of which were soon felt all around the world. तो बेटा जो Renaissance एक्चुअली में आपकी बुक में अभी 7th क्लास में स्टैंडर्ड में आपको इतना टॉपिक गिवन है. In the 8th you will learn in detail about this chapter, and in the 9th again it will be repeated to you. Okay, so जो Renaissance है ये आपको दोबारा से रिपीट होगा. 8th क्लास में एक फुल चैप्टर आएगा. अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये एक रेनेसांस का मीन्स होते हैं दैट इज अ री डिस्कवरी ऑफ एशियन कल्चर एंड आर्ट ऑफ द ग्रीक. ओके, रीबर्थ. हम जब रीबर्थ, रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ द एशियन आर्ट एंड कल्चर ऑफ द ग्रीक. सो नेक्स्ट इज द वाइजेस ऑफ डिस्कवरी. वाइजेस मीन्स जब सी जर्नी में जो लोगों ने जब न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एंड दिस डिस्कवरी वाज टुक बाय द यूरोपियंस एक्सप्लोरर्स अक्रॉस द सीज. दे फाउंड लैंड्स अबाउट विच दे हैड नो नॉलेज. अब न्यू लैंड्स उन्होंने फाउंड की, लाइक द अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय देम. हियर इज अ पिक्चर गिवन टू यू, अ पेंटिंग शोइंग कोलंबस, अ ग्रेट एक्सप्लोरर लैंडिंग इन नॉर्थ अमेरिका. His voice helped the west discover अमेरिका. तो इसने देखो वेस्ट जो अमेरिका को जो वेस्ट पार्ट था उसको डिस्कवर किया था कोलंबस ने. एंड यूरोप soon learned about the wealth of the east and trade and become an important activity. तो जब इन्होंने देखो न्यू लैंड्स को डिस्कवर किया, ईस्ट को डिस्कवर किया, इंडिया वाज आल्सो डिस्कवर, सो दे लर्नड अबाउट दैट हाउ मच वेल्थ इज देयर. सो एंड इन दिस वे trade was flourished between the east and the west. So students, for the today it is enough. In the upcoming video I will tell you about the Arabs and Islam. Moreover, this chapter only the introductory part of your upcoming syllabus. I hope you understand it. Have a nice day. Goodbye all of you.